Hello everybody, good evening. This is Dr. Gitanjali Sharma welcoming you to Talking Textbooks Kota Live, where we get you prepared for your 6 to 10 school level examination preparations, then 6th, 7th and 8th Olympiads preparation along with the examinations like NTSC, NSCJS and PRMO. And then here is our expert team, as you can see, and आप हर lecture के पहले देखते ही हो, ठीक है? So this is our team to guide you throughout your journey, and then this is all about me. Anyways, I've already introduced you in the previous classes. So anyways, now here is the important thing for you all. ये भी आप लोग बाकी classes में हमारे सारे जो भी faculty members हैं उनसे सुनते ही हैं. Now this is something very important. यहाँ पे आपको मिलता है, this is the telegram handle of TTB, जहाँ पे आप देखते हैं कि sample material for different classes has been provided to you, so you can just go and have a sneak peek at that, है ना? And then in case if you're interested in purchasing the study material, you can just log into www.talkingtextbooks.in, and then according to your own preference you can click onto any of the two, and then you can also apply my code GS Live here to get 30% instant discount. And then काफ़ी सारे portals available हैं for your payment methods, anything credit, debit, net banking और wallets. So इसीलिए जल्दी जल्दी हम इसको finish करते हैं, because आज का lecture जो हम पढ़ेंगे that is one of my favorite topics in biology. Okay, but before that TTB का जो ritual है, that is our cardinal promise, and I think this is something very important. Not take it as a ritual for your own self, not for TTB, right? But definitely moving ahead, I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. But anyways, I know all my kids are very, very smart, isn't it, Hannah? But obviously just promise yourselves that you're gonna be extremely attentive in the class, since as I told you, आज जो टॉपिक हमारा रहेगा बायोलॉजी में, दैट इज वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स. आई जस्ट लव दैट टीचिंग दैट टॉपिक, एंड बिकॉज मेरा भी फेवरेट चैप्टर था वो, ठीक है? एंड दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. गाइज दिस इज अ वेरी लेंदी चैप्टर, नो डाउट, ठीक है? बड़ा है, पर ट्रस्ट मी, अगर इसमें प्रॉपरली इन्वॉल्व होके इसको पढ़ोगे तो इट्स गोना बी एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल, ठीक है? सो ध्यान पूरा यहाँ पे, ठीक है? जो भी मैं बताऊंगी, जो डायग्राम्स आपको बनवाऊंगी, वट एवर आई एम टेलिंग यू, देयर वुड बी सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन एज वेल. यू नीड टू राइट इट डाउन, ओके? आई विल बी गिविंग यू स्पेसिफिक गैप्स इन बिटवीन, सो दैट जो भी चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ वो मिस आउट ना हो, ऑल राइट? बट अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, जस्ट कीप योर एंटायर कंसंट्रेशन हियर. This is a huge chapter, but obviously a very interesting one, trust me on that. Okay, so before we start, ये lecture हम क्यों पढ़ रहे हैं? See guys, let me just ask you something and tell you at the same time, like reproduction जो है, why is it so important? See, reproduction is a process which can be considered as a very important life process, but not an essential one. Okay, why do we call it as an important life process but not an essential one? Because see, the essential life processes would be something which we really require for our existence, जैसे कि आपका breathing हो गया, right? The respiratory system, the cardiac system, pumping of the blood, okay? So circulatory system, okay? Your excretory system, sorry. So ये सारे system जो होते हैं हमारी body में, they are essential life processes. अगर एक भी रुका तो इंसान रुक जाएगा वहीं की वहीं, okay? यानी कि death, and the person is finished. But reproduction is an important life process but not an essential one, क्योंकि ये किसी human की या फिर किसी भी organism की survival या उसके existence के लिए important नहीं है, but उसकी species को बढ़ाने के लिए important है. So are you getting my point? What's the difference between essential and important? Okay, so reproduction हम इसीलिए पढ़ते हैं. Why so? To know about the basics of reproduction and its types. Okay, so this is important, like we need to know exactly
हमें पता होना चाहिए कि अर्थ जो हमारी इतनी ज़्यादा डाइवर्स है, हाउ इज इट मेंटेनिंग इट सेल्फ? ओके, डेफिनेटली इट इज़ बिकॉज ऑफ वन एंड दी ओनली प्रोसेस विच इज़ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन मीन्स टू रिप्रोड्यूस समथिंग, उस एक ही चीज़ का बार बार बनना. ओके, अब वो प्रोडक्शन जो है या तो एकदम आइडेंटिकल हो सकता है या फिर अलग अलग म्यूटेटेड फॉर्म्स हो सकते हैं. म्यूटेड यानी चेंज्ड फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल humans, okay, human babies. So what's happening there is humans में जो exactly जो एक baby born होता है, that looks like a human. Definitely उसकी जो एक morphology है, okay, the external structure is exactly that of a human. वो साइड हटा के कि अगर कोई कुछ abnormality उनको genetic level पे अगर हो जाती है तो कुछ physical abnormalities आ सकती हैं बच्चे में. बट अगर हम एक general basis पे बात करते हैं reproduction में, so what's happening there is exactly क्या हो रहा है कि we are identical copies of our parents but different at the genetic level. Okay, why am I saying different at the genetic level? Because humans में हो रहा है sexual reproduction, right? And all of us must be acquainted with that कि जब भी sexual reproduction takes place, what happens is there's fusion of gametes. Gametes are the sex cells. Okay, अगर humans की बात करते हैं तो sperms in males and ovaries in the females. So जब भी इसका फ्यूजन होगा, अगर इसका फ्यूजन होगा तो डेफिनेटली डीएनए जेनेटिक लेवल पे हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है हमारे सेल्स में? डीएनए. ओके, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड. ओके, सो जब भी उसका फ्यूजन होता है अलग अलग जीन्स बनते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं, कुछ रिसेसिव होते हैं, यानी कि कुछ आपके मेल से आते हैं, कुछ फीमेल से आते हैं. उसमें से जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वो एक्सप्रेस हो जाता है. ओके, जो नहीं होता है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता है. राइट, वील स्टडी अबाउट इट फर्दर व्हेन वील स्टडी हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, यानी कि उसमें हम बात करेंगे इसकी. अभी जो है हमें सिर्फ इतना जानना ज़रूरी है कि रिप्रोडक्शन से जो है या तो आपकी आइडेंटिकल कॉपीज बनती हैं या फिर थोड़ी सी डिफरेंट बनती हैं. ठीक है, मॉर्फोलॉजी वुड बी द सेम. ठीक है, लेकिन जैसे हम अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, नो डाउट हमें बोलते हैं ना कि ओ ये तो अपनी मम्मी पे गया, ये अपने पापा पे गया. वाई? बिकॉज कुछ चीजें हमारे में सिमिलर होती हैं, कुछ जेनेटिक लेवल पे चेंज हो जाती हैं. ओके, सो अल्टीमेटली ये सारी की सारी चीजें जो हो रही हैं किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल एंड वी मस्ट नो व्हाई आर वी स्टडिंग दिस, बिकॉज वी शुड बी नोइंग कि एग्जैक्टली इस अर्थ पे जो इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी, इतनी सारी स्पीशीज मेंटेन्ड हैं, वो किसकी वजह से हैं? यू नो, द लॉट्स मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन दिस अर्थ. हाउ इज इट मेंटेन्ड? बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन. क्योंकि बार बार दे आर मेकिंग जनरेटिंग कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स. इसीलिए तो अर्थ पे लाइफ है आज, है कि नहीं, है ना? सो this is what we are going to study here, but I'm damn sure कि basics of reproduction हम लोग class 6 से पढ़ते आ रहे हैं, so you guys must be knowing exactly क्या होता है. बाकी depth में we are going to take you here, all right? So and then what is the importance of reproduction? ये अभी मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया है ना, और कुछ कुछ आप लोगों को पता ही है. definitely maintenance of the species on this earth. ठीक है, viability of the species on the earth, that is why reproduction is a very 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 essential process, isn't it? Now what all are we going to learn after this lecture? You'll learn exact the definition, then the types. Okay, types में भी कैसे कैसे होते हैं, उसका significance क्या होता है ना? So all these things. So guys, I just want you to note one thing. Reproduction जो होता है, okay, इसमें यू कैन से कि टाइप्स में अगर मैं बात करूं अगर अभी आपको, ठीक है, तो जो अर्थ पे वी नो ओवरऑल कि सबसे पहले बहुत प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स आए थे, जैसे बैक्टीरिया, राइट? उसके बाद धीरे 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 करके जैसे जैसे ईयर्स पास्ड ऑन इवोल्यूशन होता गया, है ना, यानी कि हम बहुत प्रिमिटिव से डेवलप होके जो है आज हायर लेवल तक पहुंच गए. सिमिलरली रिप्रोडक्शन जो होता है इट्स द सेम.
ठीक है. इट डिफर्स इन प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स एंड जैसे मतलब जैसे जैसे डेवलपमेंट हम हायर ऑर्गेनिजम्स की तरफ जाते जाते हैं, द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन ऑल्सो चेंजेस. सो ओवरऑल जो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है दैट इज अगेन डिपेंडेंट ऑन द काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म. ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होगा, प्लस उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग. जैसे अगर कोई बहुत ज्यादा लोअर एनिमल है यानी कि बहुत प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, दे विल ऑलवेज 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 एग्जिबिट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उनमें या तो ना के बराबर होता है या फिर होगा तो वो बहुत कम केसेस में या फिर किन्हीं अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है. ठीक है. सो इतना हमें समझ आया कि रिप्रोडक्शन जो है वो दो टाइप से होगा, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल. दो ही टाइप्स होते हैं. सेक्सुअल में फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं होता. बहुत ही बेसिक सी बात है यहाँ पे जो अभी मैं बस इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको बता रही हूँ, आगे वील स्टडी डीपर, है ना. एंड देन वन इज सेक्सुअल विच इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों के गैमीट्स का फ्यूजन जरूरी है. अब इसमें भी बहुत वेरिएशंस होते हैं. क्या गैमीट्स फॉर्मेशन के लिए एक अलग मेल और एक अलग फीमेल का ही होना जरूरी है? नहीं. देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स विच आर हर्माफ्रोडाइट. व्हाट आर दे? हर्माफ्रोडाइट. सो ये हर्माफ्रोडाइट्स जो होते हैं उनमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है ना. तो ये बस एक आई लेट यू नो आगे कि एग्जैक्टली किस ऑर्गेनिज्म में ऐसा हो रहा है. we've got an example as well, but maintaining the excitement of the class, let's just begin from the very basics. ठीक है. Okay, so just be with me, all right. मैंने जो बोला था वो हम पूरे लेक्चर में ध्यान रखेंगे. Be attentive, all right guys. Now moving, how do organisms reproduce? Okay, and the very basic thing, let us just start with the definition. What exactly is reproduction? अगर हम लेमन टर्म्स की बात करते हैं, लेमन टर्म्स क्या होता है बच्चों? लेमन टर्म्स यानी कि जो कि यू नो नॉट इन द वेरी मेडिको लैंग्वेज, जस्ट इन अ वेरी बेसिक लैंग्वेज जो हम बात करते हैं, तो इट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स. ठीक है, फ्रॉम देयर पेरेंट्स. ठीक है, कॉपीज बनाना उससे. अगर मैं बहुत ही बेसिक टर्म्स में बात करूं तो क्या होता है? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स. ऑफस्प्रिंग्स क्या होता है बच्चों? व्हाट इज एन ऑफस्प्रिंग? इफ आई कॉल, तो ऑफस्प्रिंग यानी कि ये बहुत फ्रीक्वेंटली वर्ड आपका यूज में आएगा. ठीक है, ऑफस्प्रिंग क्या होता है? ऑफस्प्रिंग यानी कि जो कॉपीज प्रोड्यूस है, यानी कि जिसका बर्थ हुआ. ओके, क्या हुआ? जिसका बर्थ हुआ, ऑफस्प्रिंग्स वो हुए. ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ बेबीज. ठीक है, उसको आप ऑफस्प्रिंग्स बोल सकते हो. ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑफस्प्रिंग्स. सो इफ वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन, सो इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. बायोलॉजिकल प्रोसेस, काइंडली नोट दीज पॉइंट्स, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द डेफिनेशन. बच्चों जब भी आप एक डेफिनेशन बना रहे हो, ठीक है, या लिख रहे हो, तो उसको अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके चलते हो. बायोलॉजिकल क्यों बोला? बिकॉज इट्स हैपनिंग इन दी लाइव फॉर्म्स. गेटिंग माई पॉइंट, है ना. इसीलिए उसको बायोलॉजिकल बोला, जो नेचुरली होती है. ओके, विच इज नॉट मैन मेड, बायोलॉजिकल. ओके, सो इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. सिंस वी नो कि जैसे बाकी सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी में, सिमिलरली रिप्रोडक्शन जो के लिए जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, दैट इज अगेन naturally incorporated in us, and reproduction as a process is a biological process, unlike others, like others, right? So it's a biological process by which individual organisms, yani ki offsprings, are produced from their parents, and it is a fundamental feature of all living. ठीक है, each individual organisms on this earth exists as a result of reproduction. Obviously even we are a result of reproduction. आज अगर एक ant है, ant is a result of reproduction. Okay, everything, every living being on this earth is a product of reproduction. Now comes the very important part which we have already discussed, the significance of reproduction. The significance क्या होता है बच्चों? To maintain the continuity of species on this planet, reproduction is a very 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 essential thing. Just imagine, अगर organisms इस earth पे reproduce, be it your plants, be it your animals, be it anything, अगर reproduce करना बंद कर देंगे तो do you think that there would be continuity of species?
एब्सोल्युटली नो. लाइफ फॉर्म्स धीरे धीरे अर्थ से क्या होते जाएंगे, डिमिनिश, ठीक है, एंड सब कुछ खत्म हो जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है. गेटिंग माई पॉइंट. So it is in order to maintain the continuity of species on earth. Kindly note, this is important. Maintaining the continuity of species on earth, this is an important thing when it comes to, if somebody is asking you the significance of reproduction, this line holds the maximum importance. Continuity of species on the earth, reproduction is considered as an important life process. So I hope we are clear here, all right. And biological process, you need to remember this thing. It's very, very, very essential, all right. So moving to the next part, the types of reproduction. As I have already discussed again in the introduction that reproduction जो है, जैसे हमने बात किया था, दो ही टाइप्स से होता है. कैसे कैसे? One is the asexual and the other one is the sexual, right. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है ऑन अ जनरल बेसिस. काइंडली नोट, ऑन अ जनरल बेसिस. लेकिन हमारी दुनिया तो भरी ही एक्सेप्शन से है. सो डेफिनेटली कुछ ऐसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. ओके. And trust me, it's going to be extremely interesting when we come to our examples, all right? So just stay tuned. Here we go, asexual reproduction and sexual reproduction. ठीक है? अब देखो, production of offsprings by a single parent. Kindly note, मैं आपको जो यहाँ पे बच्चों अंडरलाइन कर रही हूँ ना स्पेशली, so you really need to focus on that thing. ठीक है? Production of offsprings by a single parent without the formation and fusion of gametes. Without the formation and fusion of gametes, all right. So this is what is called as an asexual reproduction and this is the benchmark. आप ये मान लो कि asexual reproduction की जहाँ बात है वहाँ single parent ही involved होगा. दूसरा, offsprings जो produce होंगे वो बिना fusion के होंगे. क्या? बिना फ्यूजन के होंगे एंड सिंगल पेरेंट. ओके, सो यू नीड टू नोट दिस थिंग. सिंगल पेरेंट, wait just a moment, there we go. So yeah, here it is, single parent, all right, and fusion of gametes. ठीक है, ये चीज आप बिल्कुल अच्छे से नोट करके रखेंगे. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू asexual reproduction, all right. Nobody is gonna forget that. All right, now coming to the second thing, all right. Sexual reproduction is the production of offsprings by formation and fusion of special haploid cells called as gametes, all right. Now यहाँ पे अभी इसको हम दो पार्ट्स में देखें, ऑल राइट. यहाँ पे नोट करने वाला क्या हो गया? फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ऑल राइट. फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स यानी कि स्पेशल हैप्लॉइड सेल्स. अब बच्चों एक बात बताओ, आई एम डेफिनेटली श्योर यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस haploid cell, but in case even if you don't, let me just tell you this. Okay, haploid cells क्या होते हैं बच्चों? Which have n number of chromosomes. ठीक है, यूजुअली अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं, ठीक है, हाउ मेनी डू वी हैव? अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो वी हैव लाइक ओवरऑल हमारे सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 2n, यानी कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना. n जो होता है वुड बी 2n डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, यानी कि 23. सो ये जो 23 है ये 46 कब बनता है बच्चों? जब स्पर्म इज n, यानी कि इसके 23 क्रोमोसोम्स एंड एग के n यानी कि 23 क्रोमोसोम्स. ओके, सो ये जो है 46, दिस वुड बी कॉल्ड एज अ डिप्लॉइड सेल. अभी हमारे अंदर जितने भी सेल्स हैं वो क्या है? हैप्लॉइड. एंड दिस n इज कंसिडर्ड एज हैप्लॉइड. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड. यानी कि वो सेल्स जिनमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हमने क्या बोला? हैप्लॉइड. एंड जिनमें 46 यानी कि डबल क्रोमोसोम्स होते हैं उसको हमने बोला डिप्लॉइड. सो वी मस्ट ऑलवेज नोट, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि जो गैमीट्स होते हैं यानी कि दिस थिंग हियर,
ओके। गैमेट्स जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों हमेशा, दे आर ऑलवेज 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 हैप्लॉइड, ठीक है, हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉइड, तभी तो एक सिंगल सेल फिर अलग से डिप्लॉइड बनता है एंड उससे फिर एक पूरा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, ओके। So they are always haploid, all right, mark this thing. Now these are contributed, moving on to this next thing, these are contributed generally by two parents, kindly note, two parents, that is male and female is called as a sexual reproduction. तो हमने यहाँ पे जो हमारी मार्क करने वाली चीज हुई वो क्या हुई कि production of offsprings with the formation and fusion of special haploid cells called as gametes, and it will always include टू पेरेंट्स, हमेशा दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है, एंड देयर इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, सो दो पेरेंट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इन दी सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल में क्या होगा, सिंगल पेरेंट एंड नो fusion of gametes. So I hope my point is clear to you all, okay. So यहाँ पे भी आपने देखा स्पर्म इज n, एग इज 2n एंड जो जाइगोट बन रहा है वो क्या है 2n. तो जाइगोट में बच्चों, जाइगोट में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे 2n क्या होता है, डिप्लॉइड, ठीक है. तो कितने होंगे क्रोमोसोम टोटल 46. सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि क्यों हमारे गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि जब दो गैमीट्स का फ्यूजन हो जाता है तो दे फॉर्म व्हाट, दे फॉर्म अ डिप्लॉइड सेल, है ना. ऐसे हमारा फिर जो है वी आर व्हाट, डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स, है ना, ठीक है. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड देयर गोज योर टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सबसे पहले बच्चों नाउ वी विल स्टार्ट स्टडीइंग अबाउट asexual reproduction and then later we'll study sexual reproduction. But again and again I'm repeating, you need to be very basic, है ना. बहुत बेसिक से we'll go to the higher level. So ये जो बेसिक्स हैं यहाँ पे, है ना, they would help you in understanding आगे का पार्ट. So you need to be very much attentive here, okay. कोई भी चीज़ हम मिस नहीं कर सकते हैं यहाँ पे. All right, so keep your focus here, okay, keep on waking. Now you've got types of asexual reproduction. So see, when it comes to types of asexual reproduction, हमारे पास कितने types of asexual reproduction होता है बच्चों. सबसे पहला आपका होगा fusion, ठीक है. क्या होगा, fission, okay, that's fission. Then you've got budding, then you've got fragmentation, regeneration, vegetative propagation, spore formation. And इन सारे modes को हम पढ़ेंगे एक 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 करके along with the diagrams, along with your examples. So kindly note each and every actually mode of reproduction has got certain very important thing with them, okay, very important, as in, and there are certain organisms which are actually inhibiting two, okay. ऐसा नहीं है कि एक ही organism में एक ही type का mode of reproduction. Are you getting my point? So it's gonna be like two. हो सकता है कुछ ऐसे organisms हो जो दो modes of reproduction भी अपने अंदर exhibit कर रहे हैं, sorry. All right, so starting with the very first, and that is your fission. Let me just clear this up for you and then we can start another one. हम वापस से इसको बनाएंगे जिससे आपको और अच्छे से समझ आए, ठीक है. Yeah, so the first one is your fission, okay. See, we need to note one thing बच्चों, when it comes to reproduction, तो मान लो कि सबसे ज़्यादा primitive या सबसे ज़्यादा simplest form of reproduction जो होता है वो fission ही होता है. सबसे ज़्यादा simplest, which one? Fission. So see, kindly note the important thing here, it is the simplest form of reproduction, ठीक है. मैं जो highlight कर रही हूँ ना बच्चों, that is extremely important, so you need to be very much focused on that part specially, है ना. simplest form क्या होता है, simplest form, ठीक है, जिसमें कि कोई भी organisms जो है, सबसे पहली बात तो you should be noting that unicellular organisms में ही होता है. कहाँ होता है,
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही होता है. यस, एंड व्हाई एम आई फोकसिंग ऑन यूनिसेलुलर? बिकॉज सी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो दोनों में हो सकता है. इट कैन टेक प्लेस इन बोथ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर बोथ. ठीक है, यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ. ऐसा नहीं है कि जो एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में होगा, यानी कि सिर्फ यूनिसेलुलर. सी, व्हेन इट कम्स टू प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स जरूरी नहीं है बच्चों के सिर्फ यूनिसेलुलर हो. गेटिंग माय पॉइंट? प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूनिसेलुलर और कैन बी मल्टीसेलुलर, दोनों हो सकता है, राइट? सो एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, सिंस आई टोल्ड यू कि हमेशा किसमें होता है, asexual form of reproduction जो है it can take place in both unicellular. See, I'm trying to be good at my writing, but अगर कभी गड़बड़ हो जाए तो please excuse me, it's a consequence of my profession. मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लिखना नहीं आता, but I hope आप लोग को समझ आएगा. ठीक है? So okay, so now next year. यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है, यहाँ पे है ना. सो फिशन में क्या हो रहा है ना बच्चों, सबसे पहला तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज, आई हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड, सिंपलेस्ट फॉर्म, दूसरा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही होता है. ठीक है, ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, ये मैं इसलिए आपको बार बार मैं इसलिए पॉइंट आउट कर रही हूँ बच्चों, बिकॉज इट विल हेल्प यू आउट बाद में. जब आप इस सिर्फ अगर इन दो वर्ड्स को भी याद रखोगे ना तो आपको फटाफट क्लिक करेगा. एंड देन यू नो व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग आपके एग्जामिनेशंस के लिए, या तो अगर आप कोई ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, लाइक योर एनी फॉर योर हायर लेवल एग्जामिनेशंस के लिए अगर आप कर रहे हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग, सो यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक. दे आर मेंट टू बी, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, प्लस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही होता है. नाउ फिजन हैज गॉट 2 टाइप्स. ठीक है, कितने टाइप्स का होगा फिजन? 2. क्यों 2? बिकॉज एक में तो देखो, जब एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड कर रहा है ना, तो या तो वो सिर्फ 2 में डिवाइड करेगा, ठीक है, और या वो बहुत सारों में डिवाइड कर जाएगा. क्या होगा? या तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, या तो सिर्फ 2 में डिवाइड करेगा, है ना, या फिर बहुत सारों में, मल्टीपल में डिवाइड कर जाएगा. ठीक है, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, हमें थोड़ी पता है ना. सो या तो 2 में करेगा या मल्टीपल में करेगा. सो इसी बेसिस पे हमने फिजन को डिवाइड किया 2 पार्ट्स में. ठीक है, यानी कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजन. फर्स्ट इज योर बाइनरी फिजन एंड देन द अदर वन इज योर मल्टीपल फिजन. लेट मी जस्ट शो यू हियर. ठीक है, विद दिस थिंग. या so the very first would be binary fission. Let me take you the examples of binary fission किसमें होगा. Let me ask you one thing. If you guys have any idea about amoeba and paramecium. See, amoeba and paramecium, सबसे पहली बात तो first to note, as I told you, फिजन किस में हो रहा है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, राइट, है ना. सो अमीबा एंड देन योर पैरामीशियम बोथ आर यूनिसेलुलर. सो आई जस्ट एक्सप्लेन यू यूजिंग दिस डायग्राम. ठीक है, हम एक बहुत सुंदर सा प्यारा सा डायग्राम बनाएंगे, कलरफुल. लेट मी जस्ट टेक दिस. सी, हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या ले रहे हैं बच्चों? एग्जाम्पल अमीबा. अमीबा इज अ वेरी वेरी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, एंड आई थिंक सबने इसके बारे में सुना ही होगा, राइट. सब लोग सुनते हैं इसके बारे में. इट इज वेरी वेरी कॉमन. सो अमीबा के अंदर हो रहा है आपका कैसा रिप्रोडक्शन? विच रिप्रोडक्शन इज टेकिंग प्लेस इन अमीबा? दैट इज योर फिजन. ये उसका रहा न्यूक्लियस, ऑलराइट, एंड देन what you have is I'll take green, yeah, and then this is your cytoplasm. Okay, yeah, है ना. अब उसके बाद I'll just complete this diagram बच्चों, and then I'll explain you एक साथ. All right? Sorry, I'm sorry. Yeah. And this is your nucleus. अच्छा, यहाँ पे सब न्यूक्लियस के शेप में डेफिनेटली चेंजेस नोट कर रहे हैं. ठीक है, देख रहे हो ना कैसा हो गया? इलोंगेटेड हो गया अब यहाँ पे, है ना. अब उसके बाद
अब आप देखोगे नेक्स्ट में कैसा होता है. नेक्स्ट में कैन यू सी दिस? अब नेक्स्ट में ये सेल जो है कैसा हो गया? सी. ऑलराइट. एंड देन यहाँ पे हल्का सा वेट. बच्चों, हालांकि बाइनरी फिजन इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, बट यू शुड नो इन द वेरी बेसिक कि कहाँ पे क्या हो रहा है. ठीक है. सो इसका डायग्राम मैं थोड़ा सा आपको एक अच्छे से कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा एलोंगेटेड फॉर्म में बता रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा एलोंगेटेड फॉर्म में समझा रही हूँ. ओके. सो हियर वी गो. यप. ठीक है. नाउ and the last part goes like this. There we go. यहाँ पे मैं बहुत छोटा छोटा बना पाऊंगी, so but आप लोग को समझ में आ जाएगा. ठीक है. And here we go. Next one. ठीक है. And yeah, so now I hope you can see this. Let's just take this in. Yeah. So बच्चों, ये जो ऑर्गेनिज्म मैंने यहाँ ड्रॉ किया है ना, ये क्या है? दिस इज अमीबा. ओके. अमीबा के अंदर जब बाइनरी फिजन होता है, सो कैन यू सी यहाँ पे अमीबा वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल. सी. ठीक है. एकदम नॉर्मल अपना इसका मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर इसने मेंटेन किया है. जैसे ही इसमें मान लो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बाइनरी फिजन को या फिर BF, है ना, तो यहाँ पे इसने इनिशिएट किया, जैसे इसने सेल ने डिवाइड करना स्टार्ट किया. व्हाट्स हैपनिंग हियर इज, कैन यू सी द कंस्ट्रिक्शन इन द न्यूक्लियस. ठीक है. तो सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पे कि न्यूक्लियस में क्या आया? कंस्ट्रिक्शन, है ना. कंस्ट्रिक्शन इन द न्यूक्लियस. ऑलराइट. ओके. सो या, तो देयर इज अ कंस्ट्रिक्शन इन द न्यूक्लियस. जब ये फर्दर आगे डिवाइड किया तो क्या हुआ? न्यूक्लियस दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया. दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन. एंड ऑल्सो यहाँ पे देखो जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये सेल मेम्ब्रेन जो है इसमें क्या आ रहा है? ब्रेकेज. धीरे धीरे कंस्ट्रिक्शन आ रहा है. तो इसका जो सेल मेम्ब्रेन है ये, ठीक है, ये क्या हो रही है? देखो यहाँ पे सेल ऐसे मोटा सा था, यहाँ पे इलोंगेट हो गया एंड देन इट टेंड्स टू गो इनवर्ड्स. ओके, है ना. क्या हो रहा है यहाँ पे? कंस्ट्रिक्शन इन साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन. मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है साइटो यानी कि साइटोप्लाज्म एंड CM यानी कि सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. तो उसमें कंस्ट्रिक्शन हो रहा है धीरे धीरे. अब सिंस न्यूक्लियस जो है, वी नो कि हर सेल के लिए न्यूक्लियस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना. उसका गाइडिंग बॉडी होता है वो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन आया आपके साइटोप्लाज्म में एंड देन योर एक न्यूक्लियस दोनों की दोनों एक एक सेल में चला गया. सी, है ना. एक यहाँ पे चला गया, एक यहाँ पे चला गया. तो ये जो दो सेल्स हैं, ये दोनों, लेट मी राइट इट समवेयर हियर, ये जो दोनों सेल्स हैं इनको हमने क्या बोला? इनको हमने क्या बोला बच्चों? डॉटर सेल्स. DAUGHTER, डॉटर सेल्स. जब भी दो सेल्स में डिवीजन होता है, क्या होता है? जब भी दो सेल्स में डिवीजन होता है और उससे या फिर दो सेल्स मिलते हैं, ठीक है, यानी कि कोई भी एक नया सेल जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसको हमने क्या बोला? डॉटर सेल. उसको हमने क्या बोला? हम लोग क्या बोलते हैं उसको? डॉटर सेल्स. ठीक है. दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना. तो यहां कितने डॉटर सेल्स बने बच्चों? दो डॉटर सेल्स. हाउ मेनी? 2. ऑलराइट. सो नाउ यू गॉट इट. एग्जैक्टली बाइनरी फिजन में हो क्या रहा है? सेल जैसे डिवीजन स्टार्ट किया, सबसे पहले क्या हुआ? उसके धीरे धीरे न्यूक्लियस में कंस्ट्रिक्शन आने लगा. देन न्यूक्लियस दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया. साथ ही साथ सी, ये मैंने आपको ना स्टेप बाय स्टेप बताया है कि पहले न्यूक्लियस में ऐसे हो रहा है, देन उसके बाद मेम्ब्रेन में ऐसे हो रहा है, जस्ट टू एक्सप्लेन यू इन अ बेटर वे. बाकी ये सब साथ ही साथ होता है.
हाँ, ये चीज डेफिनेटली है कि सबसे पहले चेंजेस जो हैं वो न्यूक्लियस में ही आना स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना, उसके बाद बाकी जगहों पर, लेकिन साइमल्टेनियसली इट कीप्स ऑन अकरिंग, ऑलराइट। और इस तरीके से हमारे दो डॉटर सेल्स क्या हो गए, sorry, just a moment, my mic just fell off, yeah, okay, all right, yeah, sorry, okay, now continuing back again, ठीक है, यहां पे आया न्यूक्लियस में कंस्ट्रिक्शन, सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म में कंस्ट्रिक्शन, एंड फाइनली जो एक वो सेल था पेरेंट सेल, इसको हमने क्या बोला, यस दिस इज टू बी नोटेड, इस सेल को हमने क्या बोला, दिस इज द, wait, I'll just select another pen, okay, just take it from here, yeah, इसको हमने क्या बोला, पेरेंट सेल, है ना, और ये तो हो गया आपका पेरेंट सेल, ठीक है, और दिस इज व्हाट योर पेरेंट सेल, ठीक है, और यहाँ पे ये जो हो गए आपके डॉटर सेल्स, तो एक पेरेंट सेल से कितने बने, दो डॉटर सेल्स, तो आ गया समझ में बाइनरी फिजन सबको, दिस इज वेरी इजी, बट इट्स जस्ट दैट यू शुड बी नोइंग एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग, किसके बाद क्या इवेंट हो रहा है, ठीक है, और किन ऑर्गेनिजम्स में। तो फटाफट से हम लोग अगर बाइनरी फिजन की बात करें, सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, ओके, सेकेंड प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है, डेफिनेटली यूनिसेलुलर है तो बहुत ज्यादा प्रिमिटिव है, ओके, देन कहाँ पे हो रहा है ये, द सिंपलेस्ट फॉर्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल्स आर व्हाट, एग्जांपल्स आर अमीबा एंड योर पैरामीशियम, ओके, सी it's a type of reproduction in which nuclear division is followed by the appearance of a constriction in the cell membrane which gradually deepens inward and divides the cytoplasm into two parts, each with one nucleus. Finally, two daughter cells are formed. Example, amoeba, euglena. Okay, so यहाँ पे note करने वाले points क्या है बच्चों, क्या है, type of reproduction in which nuclear division, your nuclear division is followed by the appearance of a constriction in the cell membrane, which gradually deepens and divides the cytoplasm into two parts, each with one nucleus, ठीक है, so I hope the definition is justified with the diagram, okay, so you can just make it out, okay, इसको आप बना सकते हो, okay, so it's just that I'm waiting for a minute, अगर किसी का रह गया है, this is important, okay, आपको अच्छे से explanation मिल जाएगा इससे, I don't know whether ये books में I don't think इतना ज़्यादा specifically है, या है भी तो हम वापस से अगर बना लेते हैं ना तो वो चीज़ हमारे दिमाग में engrave हो जाती है, all right, so it's extremely simple, so moving on, ठीक है, नाउ कम्स योर मल्टीपल फिजन, ओके, मल्टीपल फिजन, ओके, जैसे मैंने आपको बताया था इनिशियल में, फिजन दो तरीके का हुआ, बाइनरी एंड मल्टीपल, या तो ऑर्गेनिज्म एक से दो में डिवाइड हुआ या फिर एक से बहुत सारों में डिवाइड हुआ, है ना, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था यहाँ पे, राइट, इफ आई रिमेम्बर, ओके, इट्स नॉट हियर, ओके, एनीवेज, या ये तो बताया था मैंने, ऑलराइट, सो मल्टीपल फिजन में बेसिकली क्या हो रहा है बच्चों की, एक आपका ऑर्गेनिज्म है ना, वो कितनों में डिवाइड कर रहा है, बहुत सारों में, है ना। अब जैसे कि अगर मैं एक सेल का एग्जांपल लूं, व्हाट्स हैपनिंग, फॉर एग्जांपल लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मलेरियल पैरासाइट, कौन सा पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट, है ना, एग्जांपल प्लाज्मोडियम, सबको पता है कि दिस इज द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर स्प्रेडिंग मलेरिया, प्लाज्मोडियम, ठीक है, इसको ऐसे 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 कर दो, खतरनाक होता है, ठीक है ना, इसलिए मैंने रेड में किया है, डेंजर, ओके, सो प्लाज्मोडियम में क्या हो रहा है, सी इफ आई ड्रॉ दिस, ये मान लो कि एक प्लाज्मोडियम का ये एक सेल है, दिस इज अ प्लाज्मोडियम, ओके, एंड इट हैज अ सिंगल न्यूक्लियस, क्या है इसके अंदर, ब्लैक कलर का एक सिंगल न्यूक्लियस, ऑल राइट, अब मान लो कि इसको होना है डिवाइड, दिस इज द साइटोप्लाज्म, ओके, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ठीक है, yeah, I'll just mark it also, so this is your nucleus, you've got the cytoplasm,
you've got the cytoplasm, okay, and this is the cell. ठीक है, अब जैसे इसने डिवीजन स्टार्ट किया तो बेटा मल्टीपल फिजन में होता क्या है कि मल्टीपल फिजन में क्या होगा कि जो एक सेल है ना उसका न्यूक्लियस स्पेशली, सिंस डिवीजन में हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की है कि व्हेन इट कम्स टू सेल डिवीजन उसमें न्यूक्लियस का ही इंपॉर्टेंस है, जो भी इनिशिएट होगा वो न्यूक्लियस से होगा। जैसे हमारे बॉडी में योर ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज एक्चुअली डायरेक्टिंग ईच एंड एवरी ऑर्गन, बोलते हैं ना दिमाग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंसान में, ओके ठीक है, वहीं से सारी चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं आपकी। सिमिलरली एक सेल के लिए उसका न्यूक्लियस इज द ऑपरेटिंग बॉडी मास्टर, ऑल राइट। सो जो भी इनिशिएट होता है वो कहाँ से होता है, आपका न्यूक्लियस से। यहाँ पे हमने बाइनरी फिजन में देखा था न्यूक्लियस दो में डिवाइड होता है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो मल्टीपल न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। क्या होता है, बहुत सारे इसमें जो है अंदर चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं, ओके नॉट लाइक दैट। इसमें क्या होगा, बहुत सारे आपके चेंजेस आना स्टार्ट होंगे, है ना। जैसे ये न्यूक्लियस है, इसमें अलग अलग जगह जो है थोड़ा 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 अंदर कंस्ट्रिक्शंस आने लग जाते हैं। क्या आने लग जाते हैं, न्यूक्लियस में आपके चेंजेस आने लग जाते हैं, ऑल राइट। अब ये जो चेंजेस हैं आपके, ये क्या कर रहे हैं, सी दिस इज अ सेल अगेन, है ना, प्लाज्मोडियम का ये एक सेल है। तो क्या है बच्चों यहाँ पे कि यहाँ पे ये न्यूक्लियस अलग 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 बहुत सारे न्यूक्लियस में जो है डिवाइड हो जाता है ना। और यहाँ पे ये डिवाइड हो गया ना, उसके बाद इसमें होता क्या है, व्हाट हैपन्स इज, आई मेक छोटा सा यहाँ पे और, ठीक है, कि ये जो न्यूक्लियस है ये क्या करते हैं, सेल की पेरिफेरीज पे चले जाते हैं। पेरिफेरी यानी कि जो एक्सटर्नल उसका मेम्ब्रेन का लाइनिंग होता है ना, वहां पे मूव कर जाते हैं। कहाँ कर जाते हैं बच्चों, पेरिफेरीज पे मूव कर जाता है, ओके सी लाइक दैट। अब ऐसे ही छोटे छोटे न्यूक्लियस जो है ये उसकी पेरिफेरी पे मूव कर जाएंगे, ऑल राइट। क्या हो रहा है, पेरिफेरी पे मूव कर जाएंगे, है ना। और द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज कि यहाँ पे जो ये सेल है ना, इसका ये साइटोप्लाज्म जो है वो इन न्यूक्लियस को क्या करेगा, सराउंड कर देगा। थोड़ा 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 साइटोप्लाज्म इन सब के अराउंड आ जाएगा, है ना, ठीक है। थोड़ा 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 साइटोप्लाज्म क्या हो रहा है, सब सारे न्यूक्लियस को जो है बाउंड कर रहा है, उसको लपेट रहा है, धीरे धीरे न्यूक्लियस के अराउंड आना स्टार्ट कर। जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड साइटोप्लाज्म, ये पेरिफेरी पे पहुंच गया सेल की, उसके अराउंड जो है साइटोप्लाज्म, हर एक सेल को, हर एक न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म अपने अराउंड कवर कर लेता है, ठीक है। उसके बाद रिजल्टेंट क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये जब बाहर, जैसे ही ये सारे न्यूक्लियस बाहर आते हैं, सबके पास क्या होता है, अपना एक इंडिविजुअल न्यूक्लियस के अलावा बहुत सारे ऐसे सेल्स बाहर आ जाते हैं इस तरीके से, है ना, जिसमें क्या है, सबका इंडिविजुअल साइटोप्लाज्म है प्लस सबका इंडिविजुअल एक एक न्यूक्लियस है, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे ये हुआ आपका पेरेंट सेल, क्या हुआ, पेरेंट सेल, है ना, पेरेंट सेल। और ये सब जो हुए यहाँ पे, ये क्या हो गए आपके डॉटर सेल्स, क्या हो गए बच्चों, डॉटर सेल्स, ऑल राइट। सो आई होप इट्स क्लियर, है ना, ठीक है। या आई जस्ट मेक द साइटोप्लाज्म, फटाफट फटाफट जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म बहुत सारे हैं यहाँ पे, है ना। इसमें भी ये देखो, ये देखो, ये यहाँ पे ये ध्यान रखना, आई टेल यू हाउ इट हैपन्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो ऐसे साइटोप्लाज्म इसको सराउंड कर लेता है, ऐसे सी, ऐसे इस तरीके से, गेटिंग माई पॉइंट, सी इस तरीके से, है ना। यानी कि अंदर भी है, लेकिन पर्टिकुलरली यहाँ पे देखो ये सारे न्यूक्लियस को जो है इसने ऐसे थोड़ा थोड़ा करके सराउंड कर लिया। अंदर भी है यहाँ पे, है ना, लेकिन यहाँ पे सराउंड कर लिया। और इस तरीके से फिर यहाँ पे सारे सेल्स, यहाँ पे सारे डॉटर सेल्स में ये जो है आ गया, ऑल राइट। सो इफ एनीथिंग एल्स लेफ्ट टू यहाँ डिमार्केट करना, है ना। तो इस तरीके से जो है आपका मल्टीपल फिजन होता है। तो कहाँ कहाँ हो रहा है बेटा, वन एग्जाम्पल वी हैव गिवन यू प्लाज्मोडियम, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बट फॉर नाउ यू कैन रिमेंबर दिस वन एग्जाम्पल, ठीक है। सो आई होप द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन इज क्लियर टू यू ऑल। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे में आई कांट टेल, बिकॉज है ही नहीं कुछ, ठीक है। चलो दूसरा, सी हियर यू नीड टू नोट, अब हम इसका डेफिनेशन जो है देख रहे हैं, ऑल राइट। अगेन यूजिंग द हाईलाइटर, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ओके। सो समटाइम्स द न्यूक्लियस डिवाइड्स
several times into many daughter nuclei. The daughter nuclei arranged at the periphery of the parent cell, and a bit of cytoplasm around each daughter nuclei is present. Nucleus develops an outer membrane. Finally, the multinucleated body divides into many daughter cells. So यहाँ पे हमने जो देखा ना बच्चों, सी हर एक के अराउंड साइटोप्लाज्म और मेम्ब्रेन थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ ही फॉर्म होने लग जाता है. कहाँ फॉर्म होने लग जाता है? अंदर की तरफ ही फॉर्म होने लग जाता है. ओके वेट, यहाँ देखो ये मेम्ब्रेन जो है थोड़ा 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 यहीं पर फॉर्म होने लग गया. ठीक है, थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म भी है और मेम्ब्रेन. उसके बाद जब ये बर्स्ट ओपन हुआ तो ये सारों के अराउंड स्पेसिफिक एक मेम्ब्रेन आ गई. ओके, स्पेसिफिक क्या आ गई? एक मेम्ब्रेन भी आ गई और साइटोप्लाज्म जो आया वो अलग साथ में. ठीक है, यानी कि एक बेसिक जो इसको स्ट्रक्चर है ना वो तो पेरेंट सेल के अंदर ही मिल जाता है. न्यूक्लियस भी, ठीक है, साइटोप्लाज्म भी और मेम्ब्रेन भी डेवलप हो जाती है अंदर ही. बाहर जब ये आते हैं ना इंडिविजुअली तो एकदम अच्छे से डेवलप होके और ज्यादा डेवलप होके आते हैं. गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अब हम चलते हैं आगे. या सो हियर जो नोट करने वाली चीजें हैं बच्चों, लेट मी जस्ट हाईलाइट दैट फॉर यू. ओके, समटाइम्स द न्यूक्लियस डिवाइड सेवरल टाइम्स, न्यूक्लियस डिवाइडिंग सेवरल टाइम्स. Okay, I've not selected the highlighter. So yeah, here it goes. Several times into many daughter nuclei. Okay, the daughter nuclei arrange at the periphery of the parent cell, and a bit of cytoplasm around each daughter nuclei is present. Okay, nucleus develops an outer membrane. Finally, the multinucleated body. Which multinucleated body, babies? This one. See this one. ये एक multinucleated body हो गया ना, हुआ ना multinucleated body. Let me just show you here. Wait. Yeah, there's a pen selected. See, इसको हमने क्या बोला? Multinucleated. I hope visible है, मतलब समझ आ रहा है आप लोग को? नहीं तो मैं वापस लिखती हूँ. रुके चलो जी वापस लिखें इसको. या हियर मल्टी न्यूक्लिएटेड बॉडी. क्या हुआ ये बच्चों, बालकों? अरे सो मत जाना, ठीक है ना? एवरीबडी योर अटेंशन शुड बी हियर. ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यस, सो दिस इज द मल्टीन्यूक्लिएटेड बॉडी. ओके, multinucleated body divides into many daughter cells. An example I gave was of paramecium. ठीक है, ये हमने देख लिया था. कौन सा एग्जाम्पल था? लाल डेंजर. सॉरी, पैरामीशियम नहीं, प्लाज्मोडियम. या ठीक है. नाउ मूविंग अहेड टू बडिंग. बहुत ज़्यादा जो है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. सेकेंड वाला कौन सा है बच्चों? बडिंग. अब फिजन तो हमारा हो गया, हमें अच्छे से समझ में आ गया. वेरी वेरी श्योर सबको अच्छे समझ में आया है. ठीक है ना? और कैसा लगा लेक्चर ये भी बता देना. ऑलराइट, ठीक है. सो यू नो ऑलवेज ओपन अप टू योर गुड कॉम्प्लीमेंट्स. किसको नहीं पसंद भाई? सो या मुझे तो बहुत ज़्यादा है. ठीक है. सेकेंड वुड बी ऑफ बडिंग. अब बडिंग एक दूसरा मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना? बडिंग में क्या हो रहा है बच्चों? बडिंग नाम से हमें समझ आ रहा है, बड बनना, किसी चीज में से यू नो छोटे छोटे बर्ड्स का प्रोडक्शन होना. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ बडिंग. ओके, नाउ बडिंग में क्या होता है बच्चों? अगेन ये एक मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. ओके, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में होता है. ठीक है, इसमें होता क्या है? इफ आई टेक द एग्जाम्पल, या I take the example here, what's happening? I'll just draw a diagram for you. Let's take the green one. ठीक है, जैसे कि कोई भी एक ऐसा हम ऑर्गेनिज्म ले सकते हैं, राइट? कोई भी एक यूनिसेलर, या बडिंग अगेन कैन बी यूनिसेलर, मल्टीसेलर, बोथ. ऑलराइट, दिस मस्ट बी नोटेड. किस में होगा ये? किस में होगा? इट कैन बी अ फीचर ऑफ योर मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर. जैसे हमने क्या देखा था? वी सॉ फिजन. फिजन सिर्फ और सिर्फ यूनिसेल्यूलर तक रेस्ट्रिक्टेड है. क्यों? क्योंकि वो बहुत बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, यू नो, यूनिसेल्यूलर. ओके, सो एंड सिंस इट्स द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, सो ओनली इन यूनिसेल्यूलर. बडिंग जो है आपका मल्टीसेल्यूलर यूनिसेल्यूलर दोनों में हो सकता है. सो काइंडली नोट दिस थिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके,
किस में हो सकता है, वापस रिपीट कर रही हूँ, किस में हो सकता है, बोथ मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेल्यूलर। ठीक है, चल क्यों नहीं रहा है, चल गया, ओके हो गया क्या। अब हम लेते हैं एक डायग्राम। सी, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों हाइड्रा का। हाइड्रा जो है दैट इज अ प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। प्रिमिटिव का मतलब बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है ना, नॉट मच डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जैसे मान लो दिस इज अ हाइड्रा, यहाँ पे मैं बना रही हूँ। ठीक है, ये देखो इस तरीके से कुछ है ना, इस तरीके से कुछ। ठीक है, ये आप मान लो कि दिस इज अ हाइड्रा। क्या हो गया ये बच्चों, दिस इज हाइड्रा। हाइड्रा इज मल्टी सेल्यूलर। ऑलराइट, तो देखो ये हो गया इसका पेरेंट बॉडी। क्या हुआ ये इसका पेरेंट बॉडी। ओके, पेरेंट बॉडी, क्योंकि इसी से जो है आगे हमारा क्या बनेगा, आगे बनेगा ऑफस्प्रिंग। ठीक है, पेरेंट बॉडी। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही इसको रिप्रोडक्शन स्टार्ट करना है, व्हाट इट विल डू इज इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग बड। क्या होगा, इसकी बॉडी पे क्या बन जाएगा बच्चों, बड। ऑलराइट, अब देखो किस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से है ना। तो कैन यू अप्रिशिएट दिस थिंग, यहां पे हल्का सा अगर मैं बात करूं, सी इस तरीके से एक बड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। ये पेरेंट बॉडी हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या प्रोड्यूस हुआ बच्चों, यहाँ पे ये क्या प्रोड्यूस हुआ, यहाँ क्या फॉर्म हुआ, ये बड। क्या बना, बड, है ना। अब ये जो बड है ना, ये धीरे धीरे क्या होगा, ग्रो होगा। क्या होगा, धीरे धीरे इट विल स्टार्ट ग्रोइंग मोर, स्टार्ट ग्रोइंग मोर। ठीक है, क्या होगा, ये और ज्यादा बढ़ना स्टार्ट कर देगा, है ना। अब जब ये बढ़ना स्टार्ट कर देगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये जब और बढ़ना स्टार्ट कर देगा ना, तो ये और बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायग्राम को कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, आप लोग को समझ में आना चाहिए बस, है ना। तो ये बड कंपैरेटिवली साइज में और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, साइज में देखो इसका साइज बढ़ गया, है ना, इसके कंपैरिजन में इसका साइज बढ़ गया। उसके बाद क्या होगा ना बच्चों, कि जब ये एक सफिशिएंट साइज एक्वायर कर लेगा, ठीक है, यानी कि जब इसका एक कंपैरेटिवली इतना हो जाएगा क्या, ठीक है, जैसे हम लोग छोटे थे, राइट, जैसे अभी आप लोग छोटे हो, तो पेरेंट्स को थोड़ा कॉन्शियस होता है, अकेले बाहर नहीं जाना, एंड देन यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, है ना। और जब हम बचपन में, इफ यू गाइज हैव बीन टू सम फेयर और एनी फंक्शन लाइक दैट, तो पेरेंट्स हमेशा बेबी को क्या रखते हैं, अगर बहुत छोटा है तो हमेशा गोदी में रखते हैं, है ना, बिकॉज ही कैन नॉट वॉक। एंड देन हमें याद है हमारे पेरेंट्स ने हमें बिल्कुल हमारे उनकी फिंगर पकड़ के चलते थे, ऐसे क्यों, क्योंकि हम छोटे थे, इंडिपेंडेंट नहीं थे, है ना। और अभी क्या होता है, वी कैन वॉक ऑन आवर ओन। देन कुछ हैं बच्चे जिनके पेरेंट्स उनको अब अलाउ करते हैं, ओके देन आप यहाँ शॉप तक जा सकते हो, ऐसे। तो सिमिलरली जब तक हाइड्रा को यकीन नहीं होता कि उसका ये बच्चा जो है वो इतना हो गया है कि यहाँ इंडिविजुअली अपना जीवन गुजर बसर कर सकता है, तब तक वो उसको अपने जो है बॉडी से अटैच रखते हैं। बट जैसे ये सिग्निफिकेंट साइज एक्वायर कर गया, ये क्या करता है, पेरेंट की बॉडी से क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है बच्चों, पेरेंट की बॉडी से क्या हो जाता है, डिटैच। क्या हो जाता है, डिटैच। ऑलराइट, और ये डिटैच होने के बाद उसके बाद इसका क्या होता है, ये एक अपना एक अलग इंडिविजुअल जो है एक इंडिपेंडेंट हाइड्रा बन जाता है। क्या बन जाता है, इंडिपेंडेंट हाइड्रा, इस तरीके से। फिर ये अपना एक अलग हाइड्रा बन जाता है। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो ये इस तरीके से बड से फिर एक बड़े हाइड्रा में डेवलप होता है ना। गेटिंग माई पॉइंट की बडिंग एग्जैक्टली क्या है, तो हम अगर इसको डिफाइन करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ अ डॉटर इंडिविजुअल, formation of a daughter individual from a small projection which is called as bud arising on the parent body is called as budding। ये parent body पे है, ठीक है कि नहीं है, देखो है ना, पेरेंट की बॉडी पे है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे ये थोड़ा सा और ग्रो किया और ये डिटैच कर गया। अब बच्चों यहाँ पे नोट करने वाली चीज क्या है, यहाँ पे नोट करने वाली चीज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि जो ये बड होता है,
ठीक है। ये कब तक पेरेंट बॉडी से अटैच होता है? जब तक ये प्रॉपरली डेवलप ना हो जाए। क्यों? बिकॉज बढ़ने के लिए इसको क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए होता है ना। तो ये पेरेंट बॉडी से न्यूट्रिशन डिराइव करता रहता है। ऑलराइट, जैसे एक बच्चा जो है ना, एक न्यूबॉर्न बेबी हमेशा किस पे होता है? ब्रेस्ट फीडिंग, है ना, हमेशा अपनी माँ का दूध पीता है, राइट। तब कब तक? जब तक वो सफिशिएंटली डेवलप ना हो जाए या फिर उसके टीथ ना हो जाए कि वो खुद खा सके, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वो केस है। ये कब तक अपने पेरेंट बॉडी से अटैच रहेगा? तब तक जब तक इसका डेवलपमेंट नहीं हो जाता उस लेवल तक कि ये एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट लाइफ जी सके। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना। तो ये होता है आपका बडिंग। एग्जाम्पल हमने क्या लिया बडिंग में? हाइड्रा। ऑल राइट, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात यहाँ पे ये है कि भाई नोट करने की चीज़ यहाँ ये है कि बडिंग में, ठीक है, बर्ड्स जो हैं, हमें इतना पता चल गया, इतना समझ में आ गया कि बर्ड्स फॉर्म हो रही है, ठीक है। कहाँ पे फॉर्म हो रही है? पेरेंट की बॉडी से, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अब ये दो तरीके से हो सकता है, या तो पेरेंट की बॉडी के बाहर बर्ड फॉर्म हो, ठीक है, और वो डिटैच हो जाए, या दूसरा पेरेंट की बॉडी के अंदर भी बर्ड फॉर्म होती है और वो बाहर निकल जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। तो क्या हो रहा है? एक तो पेरेंट की बॉडी के ऊपर बर्ड फॉर्म हो रहा है, एक हो रहा है आपका पेरेंट की बॉडी के बाहर, है ना। तो बडिंग इस तरीके से दो टाइप्स में क्लासिफाइड है, विच यू कैन सी ऑन द बोर्ड। यू हैव गॉट एंडोजीनस बडिंग एंड देन यू हैव गॉट एक्सोजीनस बडिंग, ठीक है। एंडोजीनस बडिंग क्या होता है, सॉरी एक्सोजीनस बडिंग क्या होता है? जब वेयर इज इट, ओके सॉरी, डायग्राम्स जो हैं वो स्वैप हो गए, ओके। ये जो एग्जाम्पल है इट्स गोना बी हियर। एनीवेज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी इसको वापस से बना के, आई विल एक्सप्लेन इट, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक। एनीवेज एक्सोजीनस बडिंग में क्या होता है ना बच्चों की, जो बड है वो पेरेंट की बॉडी के आउटर सरफेस पर अराइज होता है। कहाँ होता है? आउटर सरफेस पे, ठीक है। आई विल राइट इट। कहाँ हो रहा है? आउटर सरफेस, है ना। और एंडोजीनस बडिंग कहाँ हो रहा है? इनर सरफेस, इनर सरफेस। किसका इनर सरफेस? पेरेंट बॉडी का, पेरेंट बॉडी, ओके। आउटर सरफेस किसका? पेरेंट बॉडी। ऑलराइट, ये एग्जाम्पल हमने अभी देखा था ना, किसका एग्जाम्पल देखा था हमने? हाइड्रा, राइट। अभी इस स्लाइड पे हमने देखा था, सी यहाँ पे ये बर्ड कहाँ डेवलप हुआ है? सी पेरेंट बॉडी के आउटर सरफेस पे, है ना। तो इसको हमने क्या बोला बच्चों? पेरेंट बॉडी के आउटर सरफेस पे। कैन यू अप्रिशिएट दिस? बाहर की सरफेस पे, है ना। तो क्या होगा ये? एक्सोजीनस, है ना। अब एंडोजीनस का हम एग्जाम्पल लेंगे। किसका एग्जाम्पल लेंगे हम लोग? एंडोजीनस का, ठीक है। सी ये डायग्राम मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ बना के। आई जस्ट शो दिस हियर टू यू गाइज। सी एक्सोजीनस बडिंग में क्या है बच्चों? जैसे सिर्फ एक टेम्पररी थिंग यहाँ पे, ऐसे ये आपकी पेरेंट बॉडी, इसके बाहरी सरफेस पे बर्ड्स बन रहे हैं, ठीक है। दिस इज एक्सोजीनस एंड देन यू गॉट दिस एंडोजीनस। ये आपका पेरेंट बॉडी एंड देन इसके अंदर बर्ड्स फॉर्मेशन है, ठीक है। सो दिस इज एंडोजीनस बॉडी। ऑल राइट, सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना। इस तरीके से अब हमने एक्सोजीनस का एग्जाम्पल लिया हाइड्रा। गेटिंग माई पॉइंट? क्या लिया? हाइड्रा। नाउ we'll take the example of endogenous. Getting my point? I think ये आपको समझ में आ गया। सो ये डायग्राम बेसिकली जो है, अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूं, ये डायग्राम जो है आपका बेसिकली, कैन यू अप्रिशिएट दिस? डोंट लुक एट दी हेडिंग, वो थोड़ा चेंज हो गया है। देखो यहाँ पे जो बर्ड्स हैं, वेट, अच्छा आई विल हैव टू शो यू लाइक दैट, वेट सी, यहाँ पे जो बर्ड्स हैं ये आउटर सरफेस पे है ना, आउटर सरफेस पे है पेरेंट बॉडी की, और वहीं पर इस डायग्राम में ये कहाँ पर है? इनर सरफेस पे है पेरेंट बॉडी की। कैन यू सी? कैन यू अप्रिशिएट? अगर इसको और हम थोड़ा जूम कर सकें, ओके, दिस इज मैक्सिमम लिमिट। एनीवेज यहाँ पे देखो अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो गेटिंग माई पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस। नाउ मूविंग अहेड, या सो इसको मुझे रब करना पड़ेगा। आई नीड टू गिव यू एन एग्जाम्पल अबाउट दिस थिंग। चलो लेट अस, आई होप आपने लिख लिया ये, अगर नहीं लिखा है तो लिख लो। एंडोजीनस बडिंग में इनर सरफेस ऑफ द पेरेंट बॉडी के में बर्ड्स बनते हैं एंड एक्सोजीनस में आउटर सरफेस ऑफ द पेरेंट बॉडी पे बर्ड्स बनते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो मूविंग हियर, वेट,
सी हम एक डायग्राम बनाएंगे। एंडोजीनस का देख लिया, हाइड्रा ईस्ट। ईस्ट क्या होती है बच्चों? एक फंगस होती है ना। अगर मैं यहाँ पे, हमने हाइड्रा का एग्जांपल ले लिया, हम एक ईस्ट का भी एग्जांपल आपके लिए ले लेते हैं कि किस तरीके से इसमें बडिंग हो रहा है ना। देखो, जैसे मान लो ये एक ईस्ट है, क्या है? ये एक ईस्ट है, ये इसका सेल है। तो जब इसमें रिप्रोडक्शन होगा थ्रू बडिंग, तो क्या करता है कि यहाँ पे बर्ड्स ऐसे डेवलप होते हैं, ऐसे मल्टीपल्स, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे होते जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे निकल आया एक, यहाँ पे निकल आया। उसके बाद जब ये डिटैच होते हैं, क्यों इंडिविजुअल ईस्ट की तरह हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? ये क्या है? दिस इज ईस्ट में बडिंग। Getting my point? All right. If you want, you can draw this thing as well. Okay, मैं कुछ seconds wait कर लेती हूँ. So I hope it's done. All right. So यहाँ पे अब हम लेंगे एक example of the endogenous budding. All right, we'll take the example of endogenous budding. I'm erasing it. In case किसी का miss हुआ हो, बाद में you can rewind it and see. Okay, so let us just begin. Which color? कौन सा color choose करें for blah? Okay, yeah. Example में आता है आपका sponges. See this one, sponges. ठीक है, I hope visible है. Wait, अगर नहीं है तो I'll just change this color. Wait. There we go. ये रहा, ठीक है। ओफो, अगेन, हाँ, सॉरी, हाइलाइटर, या, देयर वी गो, ठीक है। स्पॉन्जेस, एंडोजीनस बडिंग किस में हो रहा है बच्चों? स्पॉन्जेस में हो रहा है। स्पॉन्जेस जो हैं, काइंडली नोट, दे आर प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं स्पॉन्जेस? अगर अभी हमने अगर आपने डाइवर्सिटी पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को, ठीक है। उसमें एनिमल किंगडम में देयर इज लाइक, इफ यू हैव स्टडीड अबाउट पॉरीफेरा, है ना, पॉरीफेरा में आते हैं आपके स्पॉन्जेस, ठीक है। स्पॉन्जेस बच्चों कौन से होते हैं? स्पॉन्जेस कुड बी, स्पॉन्जेस क्या क्या हो सकते हैं आपके? इट कैन बी फ्रेश वाटर और मराइन। क्या क्या होते हैं स्पॉन्जेस? फ्रेश वाटर और मरीन, यानी और या फिर मराइन, ठीक है, फ्रेश वाटर या मराइन। अब बच्चों स्पॉन्जेस के अंदर क्या होता है? एक तो ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, एसेक्सुअल। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज कि स्पॉन्जेस में जो है आपका सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। क्या होते हैं? सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, बोथ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर प्रेजेंट। ओके, एसेक्सुअली तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं किससे कर रहे हैं? बडिंग से। सेक्सुअली भी ये रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे? लेट मी टेल यू दिस थिंग। लेकिन पहले हम इसका एसेक्सुअल मोड देखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे इनके सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के ऊपर। ऑल राइट, दैट्स जस्ट एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइज, ठीक है। इंटरेस्टिंग दो। Wait, so here is a pen. Okay, so ये मैं यहाँ से रब कर रही हूँ। Okay, I hope you're done with this information. इसको आप लिख लो, ठीक है। If you want, you can just note it down. Then I'll erase it because I need to draw diagrams for sponges. ठीक है। So I'm just rubbing it. सी बच्चों, स्पॉन्जेस में जो बडिंग होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गेम्यूल फॉर्मेशन। क्या बोला हमने? गेम्यूल फॉर्मेशन। आई जस्ट शो यू, जस्ट लुक हियर। ये क्या होता है ना, ऐसा एक, जैसे ये मटका सा जो स्ट्रक्चर है, ये क्या हो गया आपका? दिस वुड बी योर गेम्यूल। आई होप ये ठीक है, नहीं है तो आई जस्ट ड्रॉ इट अगेन। या इस तरीके से,
ठीक है, अभी इसको ड्रॉ कर लेना, साथ ही साथ ड्रॉ करते जाइए. ओके, सी लाइक दैट. ठीक है, सो इसको हम मार्क करेंगे. क्या मार्क करेंगे? दिस इज अ गेम्यूल. GEMMULE. GEMMULE. क्या रहा ये? गेम्यूल. ओके, ठीक है ना. सो अब ये जो गेम्यूल होता है ना बच्चों, इसके अंदर होते हैं आपके क्या? इसके अंदर होगा आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर. सो दिस इज योर आउटर मेम्ब्रेन. ठीक है. देन दिस इज योर इनर मेम्ब्रेन. बच्चों साथ साथ में ड्रॉ करते जाइए. ऑलराइट, या सो दिस इज योर इनर मेम्ब्रेन, दिस इज योर आउटर मेम्ब्रेन. ऑलराइट, एंड देन इसके अंदर जो होते हैं कुछ सेल्स हो जाते हैं. ठीक है, उनको हमने क्या बोला? आर्कियोसाइट्स. बच्चों जहां पर भी जो सफिक्स है, क्या जहां पर भी आपको सफिक्स दिखता है, वेट, जहां पर भी आपको सफिक्स दिखेगा, सफिक्स यानी कि CY, वेट, सफिक्स क्या होता है? जो कि किसी भी वर्ड का लास्ट फ्रेमिंग वो होता है, जो आपके रहेंगे, जैसे कि जो लास्ट पार्ट होगा किसी भी वर्ड का, दैट वुड बी कॉल्ड एज योर सफिक्स. CYTES यानी कि सेल्स. इट डील्स विद साइट्स, यानी कि जहां भी साइट्स सुन लो, दैट मीन्स सेल्स. ऑलराइट, सो सेल्स. नाउ यू गॉट लॉट मेनी. Just me do the thing. Wait. Yeah. So can you appreciate? This is a gemule. The entire structure is a gemule. All right. Now you've got an inner membrane. You've got an outer membrane. Okay. And then यहाँ पे होते हैं आपके छोटे छोटे इस तरीके के structures. See, ऐसा लग रहा है मटके में क्या भरा हुआ है? मटके में क्या भरा हुआ है? कंकड़, पत्थर बहुत छोटे छोटे से, है ना? ऐसा ही दिख रहा है, लाइक दैट. ठीक है, अब इनको हमने क्या बोला? इनको हमने बोला दीज आर कॉल्ड एज योर आर्कियोसाइट्स. आर्कीसाइट्स. क्या बोला? आर्कीसाइट्स. ARCHECYTES. आर्कीसाइट्स. ठीक है, ये सेल्स होते हैं, है ना? Now, I hope you guys are drawing it. ठीक है, all right. So outer membrane, you've got archecytes. ठीक है. देन ये इस तरीके से जो मैंने ये क्रॉस लाइंस और इस तरीके से बनाए हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पिक्यूल्स. SPICULES. व्हाट आर दे? स्पिक्यूल्स. ठीक है, क्या बोला हमने इनको? स्पिक्यूल्स. ठीक है, अब बच्चों हो क्या रहा है ना? कैन यू अप्रिशिएट दिस मल्टीपल सेल्स इन ईयर? ठीक है, इतने सारे, ये क्या है? आर्कीसाइट्स. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन टू दीज आर्कीसाइट्स आर वंस दे आर डेवलप्ड. ओके, वंस दे आर डेवलप्ड, व्हाट विल हैपन इज दैट दिस gemule would burst open. ठीक है, ये क्या होगा? दिस would burst open. आई एम टेकिंग इट हियर थोड़ा सा. ओके, ये यहां से आपके जो है पूरे के पूरे जो है बाहर आ जाएंगे. एंड वेट, ओके, वेट, मेकिंग इट हियर. ओके, यहां से आपके बाहर आ जाएंगे एंड देन उसके बाद ये इंडिविजुअल स्पंजेस में इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे. ठीक है, एंड देन दे विल डेवलप. ओके, व्हाट दे विल डू? दे विल डेवलप, है ना? तो इस तरीके से जो है ये हमने जो पढ़ा ना, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एन एंडोजीनियस बडिंग, है ना? क्योंकि ये जो स्पोर्स हैं, लाइक all these archecytes, they are developing within the body of the parent. All right, so this is the endogenous budding. So I hope now you're very much clear. Hydra के example से yeast का हमने example लिया, and exogenous, then in endogenous we took an example for gemule formation. ठीक है, so I hope it's clear. एक बार और diagram को appreciate कर लो. ठीक है.
Yeah. So moving to the next slide. See, now this is something I already told you this point that जब तक एक पूरा इंडिविजुअल प्रॉपरली डेवलप नहीं हो जाता वो पेरेंट बॉडी से नहीं छूटेगा, राइट? जैसे हमने बोला जब तक हमारे पेरेंट्स को नहीं लगता है कि नहीं ओके नाउ वी आर ऑलमोस्ट रेडी कि हाँ अब ये लोग अकेले बाहर जा सकते हैं कहीं पे भी, सो देन आवर पेरेंट्स अलाउ अस परमिटिंग कि ठीक है नाउ यू कैन गो आउटसाइड एंड डू स्टफ लाइक दैट, राइट? है ना? बट जब तक हम छोटे होते हैं हमारे पेरेंट्स आइदर दे विल ऑलवेज वॉक विद अस इन हैंड, दे वोंट लेट अस गो एनीवेयर अलोन, इजंट इट? है ना? सबके साथ केस होता है, राइट? मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा हुआ है. सो हियर वी सी हमने हाइड्रा वहाँ पे ड्रॉ किया था. सिमिलरली दिस इज अगेन हाइड्रा. ओके, सो यू कैन सी यहाँ पे ये एक्सोजीनस रहा ना, यहाँ पे बर्ड आपका डेवलप हुआ, धीरे धीरे देखो कितना बड़ा हो गया, अभी इंडिविजुअल हाइड्रा में बन के बाहर निकल जाएगा, ठीक है? और उसके बाद इट वुड बी एन अडल्ट. And जैसा मैंने बताया that during the process of budding, see this is important, so kindly note here the highlighter. Yeah, so here the bud remains attached to the parent body so as to derive its nutrition from the parent, but as it matures it gets detached from the parent body. All right, now moving to the next slide, and that is your fragmentation. ठीक है, अब देखो वापस से नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि फ्रेगमेंटेशन जो होता है, क्या फ्रेगमेंटेशन कहाँ पे होता है बच्चों? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में. कहाँ होता है? सी हमने बात तो की है पूरे मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, बट आई टोल्ड यू कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हालांकि प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में होता है बट यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर दोनों में हो सकता है, ठीक है? सिमिलरली वी हैव गॉट फ्रेगमेंटेशन. सो फ्रेगमेंटेशन में कैन यू अप्रिशिएट दिस एग्जाम्पल हियर? ठीक है, नाउ दिस इज एन एल्गी. क्या है ये? एल्गी. सो एल्गी में भी बहुत सारी एल्गीज होती हैं. सो द एग्जांपल व्हाट वी हैव टेकन इज ऑफ अ स्पाइरोगायरा. क्या? स्पाइरोगायरा. फ्रेगमेंटेशन में बच्चों बेसिकली होता क्या है ना कि एक कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है? तो इनको अगर आप डिवाइड कर दोगे ना या काट दोगे ना तो दे डेवलप इनटू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स. किस में हो जाते हैं ये? इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स में जो है ये डेवलप हो जाते हैं. ऑल राइट, सो इट्स अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन और द रीजनरेशन एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिप्लेस देयर लॉस्ट पार्ट्स. काइंडली नोट दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. वेट, we won't even call it as only a process of reproduction. Fragmentation को आप सिर्फ एक एक reproductive process नहीं बोल सकते हो. Exactly ये जो है एक तरीके से किसी भी एक lost part के regeneration के लिए भी होता है. lost part के क्या part को अगर regenerate करना है तो उसके लिए भी होता है regeneration, ठीक है ना? प्लस reproductive process, ठीक है? reproductive में यहाँ पे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस. ऑलराइट, सो ये दोनों काम कर रहा है आपका, है ना? तो फ्रेगमेंटेशन के अंदर दोनों आ गए. ऑलराइट, सो मूविंग टू द डेफिनेशन. क्या बोला हमने इसको? टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन और द रीजनरेशन एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू रिप्लेस देयर लॉस्ट पार्ट. In this process, an entire new organism can grow from certain pieces or cells of the parent organism. Can you appreciate here? देखो ये एक individual स्पाइरोगायरा जो है, ओके, सो इसको हमने काट दिया, ठीक है? या मान लो कि जैसे ये इसका कोई लॉस्ट पार्ट है किसी इंजरी की वजह से, इट गॉट ब्रोकन डाउन इनटू एनी पीस और समथिंग लाइक दैट, राइट? सो इट इज डेवलप्ड इनटू टू. यहाँ पे देखो ये दो पार्ट्स में डेवलप हो गया. अब ये जो दोनों पार्ट्स है ना, ये दोनों ओके ये इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स में धीरे धीरे जो है ग्रो कर जाएंगे, ठीक है? तो फ्रेगमेंटेशन अगर कहीं पे हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो एक रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ही हो सकता है कि वो ऑर्गेनिज्म अपना लॉस्ट पार्ट को जो है मतलब उसका लॉस्ट पार्ट जो है रिप्लेस कर रहा हो, तो अल्टीमेटली वो एक इंडिविजुअल में ही डेवलप हो जाता है ना? तो इट कुड बी अ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस और जस्ट टू मेंटेन द वायबिलिटी, जस्ट उसका जो है एक लॉस्ट पार्ट को रिप्लेस करना भी हो सकता है, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट इज योर स्पोर फॉर्मेशन. ओके, देखो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं. लेट मी जस्ट टेल यू योर एक और फंगस का, ओके, विच इज योर ओके. डेफिनेशन पे हम बाद में जाएंगे. सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम देखते हैं इसका, ठीक है? ओ आई लव ड्राइंग डायग्राम्स. बायोलॉजी में जितना डायग्राम्स आप ड्रॉ करते हो, द मच यू प्रैक्टिस,
with your diagrams, it's gonna yield you more and more marks. Getting my point? इस चीज़ को हमेशा सब लोग ध्यान रखेंगे अपने एग्जाम्स में, especially when it comes to your school examinations. The much more colorful you make your exam copy, your notebook, ठीक है, it's gonna yield you more marks because that's what biology is all about, right? मोर एंड मोर डायग्राम, जितना अच्छा सुंदर उसको बना सकते हो ना उतना बनाओ. यहाँ पे बोर्ड पे स्टिल आई कैन नॉट डू दैट गुड, बट आई होप इट्स हेल्पिंग यू गाइज, है ना? सो ओके, नाउ टेकिंग द एग्जाम्पल, या सो वी डिड दिस. राइजोपस, ओके, राइजोपस अगेन इज अ फंगस. ऑलराइट, जैसे क्या है, हाउ, या लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से मैं इसका एक पूरा यहाँ पे बेस बना रही हूँ, ठीक है. जैसे ये हो गया आपका राइजोपस, ओके, सी लाइक दैट, देयर यू गो, लाइक दैट, green. ओके, डायग्राम हमारा हो गया. नाउ द स्पोर फॉर्मेशन, it's a process of reproduction most commonly found in fungi, some cocci and bacillus bacteria. कहाँ होता है ये बच्चों? Kindly note. Okay, wait. Here I'll explain you the diagram once we read this. ठीक है? Yeah, here. So कहाँ पे हो रहा है? Most commonly found in some fungi, some cocci and bacillus bacteria. ठीक है, सारा primitive organisms में it's taking place. Alright. In this process, a structure is formed which is called as a sporangium. वहाँ पे mark करेंगे अभी हम, ठीक है? And then the nucleus divides several times, and each nucleus with a little trace of cytoplasm form a spore. Spores are then liberated, develop a new hyphae. Important, okay, very very important. Kindly note, ये जो दो point हैं इसमें, तो ये दो words हैं, especially when it comes to your sporangium, then your hyphae, they are important when it's come to spore formation. Getting my point? All right, so you must be focused here. See, this is something I drew, ठीक है? यहाँ पे this is your hyphae, hypha. If I talk, you like singular अगर आप बात करोगे, it would be hypha, okay, and अगर ज़्यादा अगर आप इसको बोलोगे, it would be your, this would be your hyphae, multiple. Okay, so yeah. All right, so see, this is a rhizopus, ठीक है? So यहाँ पे ये जो structure form हुआ, this is called as a sporangium. ओके, स्पोरेंजियम के अंदर यहाँ डेवलप हुए बहुत सारे स्पोर्स. ओके, ये स्पोर्स जो हैं they would liberate themselves after proper development and then form different types of hyphae. Okay, so this is what is happening here. So getting my point, what is exactly spore formation? एक hyphae से बहुत सारे individual आपके एक स्पोरेंजियम से बहुत सारे hyphaes बाहर निकलना स्पोर फॉर्म में, ये स्पोर बाहर निकलेंगे and then ये एक particular individual में convert होंगे. Okay, now comes your regeneration. What is regeneration? Ability to replace a lost part. Okay, so regenerate a lost part from the body is called as regeneration. ठीक है, जैसे प्लेनेरिया एंड हाइड्रा में. ठीक है, see what happens is, here I'll tell you, where did it go? हाँ, यहाँ पे. ठीक है, जैसे ये एक ऑर्गेनिज्म है प्लेनेरिया. ठीक है, तो इसको हमने
जैसे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया, काटा यहाँ, यहाँ और यहाँ, तो ये जो तीनों पार्ट्स हैं ना, ये एक इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएंगे. कहाँ पे? यर, यर एंड यर. तो 3 सेपरेट ऑर्गेनिजम्स में इट गॉट डेवलप्ड. ठीक है. सो एनीवेज this was all about regeneration. ठीक है. Takes place in planaria and hydra, and remaining we'll continue in our next lecture. All right, so I hope you understood whatever I told you here. ठीक है. So this would be taken later, and if you like the video, kindly hit that like button and do share it with your friends. Do subscribe to the channel of Talking Textbooks, and I'll see you in the next class. Thank you. Bye bye.